See, we are left with two chapters in auditing, and that is of Module 4, Chapter 7, Recent Developments in Types of Audits, and another chapter is Audit and CIS, that is Computer Information System. Okay, so now this chapter is going to be very easy. Just we have to understand, we have to see whether what types of audits are there and what are the recent developments in audit field. Okay, means there are new type of audits that have been added. Now see, first type is cost audit. Earlier it was not there, but now if you see, there is new type of audit which is known as cost audit. Now what do you actually mean by cost audit? Audit means to check whether everything is true and fair, whether financial statements that are being shown and that are being made as per the current laws of Indian Companies Act 2013. So whether those particular financial statements of any company, pick any company, so you need to check. Audit means you need to check whether every detail, every transaction is recorded correctly. Okay, so whether if financial statement shows true and fair view, you need to check that. So that particularly is known as audit. In general, it is known as audit. But now there are various types of audit. If you see the index page of this, you will come to know how many types are there. So some 9 types are there and very easy. We just have to understand the types. Okay. So cost audit, human resource audit, management audit, operational audit, forecast audit, social, tax, forensic, environment. So these are the types of audit that are recently been added in the field. Okay. Now, particularly, what do you mean by cost audit? A cost accountant. Always remember, no one else but a cost accountant has to be appointed for doing cost audit. We will learn here qualifications. So according to section number 128 Companies Act 2013 empowers the central government to order companies engaged in manufacturing, production, processing, mining. ऐसी अगर कोई कंपनीज हैं तो आपको अपना कॉस्ट रिकॉर्ड अलग से मेंटेन करना पड़ेगा विच इज प्रिस्क्राइब्ड मैनर. जैसे हमने कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट सीखा था ना, तो ये प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको अपनी सारी डिटेल्स क्या बोलते हैं रिकॉर्ड्स में मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. इट इज मैंडेटरी फॉर देम एंड सो दैट द ऑडिटर विल फाइंड इट ईजी. जो आपने फॉर्मेट बनाकर रखा है सो दैट ऑडिटर फाइंड्स इट ईजी टू चेक ऑल द रिकॉर्ड्स एंड द ट्रांजैक्शंस. ऑफ कोर्स इट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू बी प्रूफ रीडेड, मतलब उसको एविडेंस के साथ चेक किया जाता है. अभी क्यों होता है कॉस्ट ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू फिक्स अप द सेलिंग प्राइस. आपने कॉस्ट ऑडिट कर ली मतलब आपका पता लग गया कि आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी प्रोडक्ट की. ठीक है. कंसेशन कितना देती है आपकी कंपनी ऑफर प्राइस में, डिस्काउंट्स कितने देती है, सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स. अब आपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाकर रखे हैं तो पता लग जाता है कि हमारी कंपनी ने कॉस्ट जितना चार्ज किया है कस्टमर से वो वाइबल है. ठीक है, जितना होना चाहिए उतना है. टू अप्लाई फॉर प्रोटेक्शन टू बी ग्रांटेड टू कंपनी, मतलब आपके पास फ्यूचर में एविडेंस है ना कि हम हमारे प्रोडक्ट के ऊपर इतना इतना खर्चा हुआ है. मीन्स आपके पास प्रोटेक्शन है, आपके पास प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं. टू डिटरमाइन द कॉजेस ऑफ लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी. कभी किसी प्रोडक्ट में लॉस हो गया तो हमको ये जानकारी मिल सकती है इजीली कि क्यों लॉस हो गया, क्योंकि इसका कॉस्ट ज़्यादा हो गया था. सो आपने कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे तब तो पता चलेगा कॉस्ट ज़्यादा हुआ था कि नहीं. ठीक है. अब कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? द ऑडिटर शुड बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स. ठीक है, इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस. मतलब आपको सेक्शन याद नहीं पड़ता है तो दैट इज ओके. हर एक चीज का सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है. हु अपॉइंट्स द कॉस्ट ऑडिटर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. लेकिन उसके लिए आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा. किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का. ठीक है. नेक्स्ट देखो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कॉस्ट ऑडिटर की. कॉस्ट ऑडिटर शुड बी नॉर्मली कंडक्टेड बाय कॉस्ट ऑडिट should normally be conducted by auditor who should be a cost accountant. आपको बोला ना मैंने
मतलब जो एक कॉस्ट अकाउंटेंट होता है ना, ही इज एलिजिबल फॉर बिकमिंग अ कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959। एक्ट याद नहीं भी पड़ता है ये ठीक है, इट्स ओके, बट आपको पता होना चाहिए कि ये पर्सन क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट है। ठीक है, उसके पावर्स एंड ड्यूटीज, ऑफ कोर्स जो हमारे पावर्स एंड ड्यूटीज जो जनरल ऑडिटर के होते हैं ना, वही सेम पावर्स एंड ड्यूटीज है, मतलब जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपको चाहिए तो रीड ऑन कीजिए। Cost auditor has the same powers and duties which a general company auditor has under section 143। ओके, रिपोर्ट्स, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। एज अ कॉस्ट ऑडिटर आपने जो रिपोर्ट बनाई है, इट हैज टू बी सबमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट्स, और उसमें एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए आपकी, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए, और वो रिकॉर्ड से पता लगना चाहिए कि कंपनी में ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्क्लोज किया हुआ है। ठीक है, मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ओके, ये होता है फर्स्ट टाइप कॉस्ट ऑडिट। आई होप इट इज सिंपल फॉर यू। यस, इजी लगा? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अभी आ जाओ ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। अब ये क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी ऑडिट जो ह्यूमन रिसोर्स की होती है। मतलब आपकी कंपनी में ना कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने 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 लोग काम करते हैं, अच्छा कौन सी पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं, किस पोस्ट पे क्या जॉब जॉब आपने उनको देख के रखा है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन रखे हैं आपने आपने उनकी सारी पर्सनल डिटेल्स और प्रोफेशनल डिटेल्स और एक्सपीरियंस, और उन्होंने जो अब तक आप जॉब पे उन्होंने जो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, वो आपने डॉक्यूमेंट्स पे कैसे संभाल के रखा है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, पॉलिसीज क्या है, आप कैसे अपॉइंट करते हो ह्यूमन रिसोर्स को, अगर आपको लोग चाहिए कंपनी में तो आप कैसे पोस्ट को फिल कैसे करते हो, पॉलिसीज क्या है, सिस्टम क्या है आपका ह्यूमन रिसोर्स का, प्रोसीजर कैसे फॉलो करते हो ट्रेनिंग का, डेवलपमेंट का, या फिर आप रिक्रूटमेंट कैसे करते हो लोगों की। ठीक है, ये पूरे सिस्टम को चेक करना इज नोन एज HRA, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं HRA, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। देयरफॉर अगर आप देखोगे तो थोड़े में अगर इन्होंने लिखा हुआ है, एंड थ्रू HR ऑडिटिंग इज नॉट, सॉरी, दो HR ऑडिटिंग इज नॉट मैंडेटरी। हाँ, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप करेंगे तो आपकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरा एक सिस्टम, आप पूरे सिस्टम पे नजर रख रहे हो आप, एक पूरा एक अलग सिस्टम होता है HR सिस्टम, उस पे नजर रख रहे हो आप, तो ये सिस्टम बेस राइट होगा तो आपका ह्यूमन रिसोर्स जो जो होगा वो एफिशिएंट होगा, वो और इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो येट ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज आर ऑप्टिंग फॉर रेगुलर HR ऑडिट्स, मतलब कंपल्सरी नहीं है, बट स्टिल बहुत सारी कंपनीज HR ऑडिट करवाती हैं इन ऑर्डर टू एग्जामाइन। क्यों करवाती हैं? इन ऑर्डर टू एग्जामाइन द एग्जिस्टिंग HR सिस्टम, पता लगे कि हमारा सिस्टम इन लाइन है, कि मतलब पॉलिसीज के साथ चल रहा है, स्ट्रैटेजीज के साथ चल रहा है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए हम HR ऑडिट करते हैं। अब HR ऑडिट इफेक्टिव तब होता है, आई मीन अगर आप इफेक्टिव HR ऑडिट करते हो, हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द नीड्स फॉर इम्प्रूवमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ HR फंक्शंस। अगर आपका ऑडिट अच्छे से हो गया तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ का इम्प्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, तो आपको इसके लिए ये रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, रेगुलर HR ऑडिट करते रहना चाहिए, सो दैट you need to know what improvements can be brought in। ठीक है, just a minute। Okay, so HR basically covers verification of documentation, मतलब क्या क्या HR ऑडिट में होता है वो बता रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं आप, जॉब डिस्क्रिप्शन, एक एक पर्सन का क्या क्या जॉब ड्यूटीज हैं, पर्सनल पॉलिसीज, मतलब जिस लेवल पे, जिस जॉब पे, जिस पर्सन को आपने अपॉइंट किया है, क्या कैसे काम करते हैं वो, क्या सिस्टम क्या फॉलो होता है, वो पॉलिसीज चेक करना, लीगल पॉलिसीज चेक करना। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए चेयरपर्सन को अपॉइंट किया है,
सो लीगली वो 5 years के लिए अपॉइंट होना चाहिए, उससे ज्यादा तो नहीं हो गया. सो यू नीड टू चेक लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो, लीगल अप्लायंसेस ऑल्सो. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कैसे करते हो आप, उसका सिस्टम प्रोसीजर क्या है. एवरी ईयर आप रिक्रूट करते हो लोगों को, कि फ्रेशर्स को रिक्रूट करते हो कि एक्सपीरियंस्ड पर्सन को रिक्रूट करते हो. सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू सिलेक्ट इन योर कंपनी. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का प्रोसीजर क्या है. कॉम्पेंसेशन कैसे देते हो लोगों को, अगर अगर ग्रेचुटी देना हो, पेंशन देना हो, या फिर किसी को कंपनी से आपने ज़रूरत से पहले निकाल दिया तो कॉम्पेंसेट कैसे करते हो आप, रिट्रेचमेंट कॉम्पेंसेशन जिसे हम कहते हैं. सो एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बोनस सिस्टम, कैरियर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को आप कैसे मेंटेन करते हैं. मतलब इन सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, ये सारे सिस्टम्स को चेक करना इज नोन एज एचआर ऑडिट. ये सब चीज़ें चेक होती हैं. ठीक है. अब ऑब्जेक्टिव क्या है, एचआर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एचआर ऑडिट के, क्या मतलब क्यों करते हैं आप एचआर ऑडिट. टू रिव्यू एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एचआर, मतलब देखना कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स वर्किंग, टू सी वेदर एवरी वर्किंग इज इफेक्टिव और नॉट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. और आपने जो देखा कंपनी में, सही देखा गलत देखा, उसकी एक्सप्लेनेशन देना, पूरी इंफॉर्मेशन डालना अपने अपनी रिपोर्ट में. ठीक है. उसके लिए टू इवेल्युएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, मतलब तू देख, पहले तो आपको ये देखना है कि जितनी भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई थी उसका, उसको इवेल्युएट करना कि कितनी अच्छी इवेल्युएट, कितनी अच्छी इंप्लीमेंट हुई थी. अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, उसके रीजंस क्या हैं, और उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं उसको करेक्ट करने के लिए. यही तो होता है इवैल्यूएशन प्रोसेस में. इवैल्यूएट करना, हम आपके पेपर्स को इवैल्यूएट करते हैं तो क्या देखते हैं, कितना लिखा है, कितना अच्छे से लिखा है, जो समझाया था वो समझ में आया कि नहीं हुआ, तो हमको इवैल्यूएशन से ही तो पता चलता है कितनी मार्क्स देनी है ना. सो ऑडिटर के रिपोर्ट में कैसे इवैल्यूएशन होती है कि जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई थी वो कैसे वो इम्प्लीमेंट हुई है, कितने हद तक इम्प्लीमेंट हुई है, और हुई भी है कि नहीं हुई है. अच्छा, अच्छे से हुई है कि बस ऐਵੇਂ ही उन्होंने कर दिया और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया. So you need to check that. Okay, to evaluate the performance of personal staff, HR employees, आपका जो स्टाफ है, आपका जो एम्प्लॉयज हैं, उनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना कि जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच हो रहा है, कि ट्रेनिंग की जरूरत है अब भी लोगों को, एम्प्लॉयज को. ठीक है. टू सीक द प्रायोरिटीज, मतलब एम्प्लॉयज की प्रायोरिटीज क्या है, आपके गोल्स, मैनेजमेंट के गोल्स क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं मैनेजमेंट के, वो चेक करते हुए आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हो ना. सो यू नीड टू सीक टू चेक द प्रायोरिटीज, वैल्यूज, गोल्स ऑफ द मैनेजमेंट फिलॉसफी. उससे ही तो पता चलेगा वो एचआर को कैसे मेंटेन करते हैं, अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मेंटेन करते हैं, है ना. तो अब ये अलग अलग टाइप के अप्रोचेस हैं जो विलियम वेथर एंड केथ डेविस ने ये 5 अप्रोचेस एचआर ऑडिट में निकाले थे. अप्रोचेस हैं ये, मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जो एचआर ऑडिट आप कर सकते हो. कंपैरेटिव अप्रोच, मतलब एक मॉडल, आपने कंपनी का एक मॉडल ले लिया, उसको दूसरे मॉडल से कंपेयर कर लिया, या फिर एक मॉडल में जो आपने अप्लाई किया, पॉलिसीज को अप्लाई किया, उसके रिजल्ट्स के साथ आपने उसको कंपेयर किया. आ रहा है समझ में, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव अप्रोच. आउटसाइड अथॉरिटी अप्रोच, अब नाम से ही समझ में आ रहा है, आउटसाइड मतलब एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर किया. आउटसाइड कंसल्टेंट, मतलब जो आपका बेंचमार्क है. समझो अभी आप एग्जाम्पल ले लो, आप क्लासेस पे जाते हो, वहाँ पे तो बहुत अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट होते हैं. ठीक है. अब आपने क्या किया, 80% स्कोर किया, और किसी और कॉलेज के स्टूडेंट ने 90% स्कोर किया. तो अब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप ट्राई करोगे कि मैं ये दूसरे कॉलेज का जो ये दूसरा स्टूडेंट है उसको मैं टारगेट करूँ. तो वो आपका बेंचमार्क बन गया ना, 90% ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज. ठीक है. तो आउटसाइड मतलब आपकी कंपनी का कंपैरिजन किसी बेंचमार्क के साथ होता है. जो जो हाईएस्ट होता है ना आपका, उस वो उसे कहते हैं बेंचमार्क. द टॉप पोजीशन जिस पे आपको पहुंचना है उसे कहते हैं बेंचमार्क. ठीक है. तो आउटसाइड अप्रोच लिया जाता है इसमें, मतलब किसी और के साथ आप कंपेयर करते हो. स्टैटिस्टिकल अप्रोच मतलब अभी आप चेक करोगे स्टैटिस्टिकली, मतलब एम्प्लॉयज का एब्सेंटिज्म क्यों बढ़ रहा है वो चेक करना स्टैटिस्टिकली विथ रीजंस, लॉजिक्स.
एम्प्लॉय हमारी कंपनी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस पहले से खराब क्यों हो गया है, ये स्टैटिस्टिकली चेक करना। ठीक है। नेक्स्ट अप्लायंस कंप्लायंस अप्रोच। कंप्लायंस मतलब ये लीगल प्रोविजंस हमने कंप्लाई किए, अगर अगर यूज किए तो मेरी कंपनी के पॉलिसीज में क्या इफेक्ट हो जाएगा। अगर मैंने जीएसटी को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस में लाया तो मेरी कंपनी के सेल्स पे क्या इफेक्ट होगा, कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप अपने ऊपर ढालते हो तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका, उसे कहते हैं कंप्लायंस अप्रोच। I hope you guys are understanding. Yes, ma'am. Okay. Next is MBO approach. MBO मतलब management by objectives. MBO management by objectives. ये आप ऑलरेडी जब आप ओबी या फिर ऐसा कोई जनरल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तब आपने ये MBO पढ़ा हुआ है। पीटर ड्रकर का ये कॉन्सेप्ट है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉयज को साथ साथ लेके चलो। उनको ऐसे मत ट्रीट करो कि सबॉर्डिनेट्स हैं और हम सुपीरियर हैं, हमारे पास जो आइडियाज़ है वो अच्छी हैं और जो एम्प्लॉयज़ के पास जो आइडियाज़ ही नहीं होती हैं या होती भी है तो बेकार आइडियाज़ होती हैं। नहीं, क्योंकि वो छोटी लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो क्लेवर नहीं हो सकते। क्या पता उनके पास और अच्छी आइडियाज़ हो। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है, आप अपने एम्प्लॉयज़ को साथ साथ लेके चलो तो उनका परफॉर्मेंस भी बेटर होगा, वो मोटिवेटेड होंगे, वो ऐसे नहीं फील करेंगे दैट वी आर लेफ्ट बिहाइंड, दैट वी आर डीमोटिवेटेड, वो ऐसा फील नहीं करेंगे। वो एक अपनी कंपनी को फैमिली लाइक ट्रीट करेंगे। तो अपनी फैमिली को हम कितना प्यार से और कितना अच्छे से चलाते हैं, अपने घर को संभाल के धीरे धीरे अच्छे से चलाते हैं, सोच समझ के खर्चा करते हैं। तो सिमिलरली एम्प्लॉयज़ भी ऐसा करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, टारगेटेड से मैच करेगा। सो ये गोल्स को सेट करने का एक तरीका होता है, एक अप्रोच होता है, एक टाइप होता है। तो ये ऐसे करके इन्होंने 5 टाइप्स अप्रोचेस बनाए हुए हैं। किसने, विलियम रेथर एंड केथ डेविस। 5 अप्रोचेस उन्होंने डाले थे एचआर ऑडिट में, कंपैरेटिव अप्रोच, आउटसाइड अप्रोच, स्टैटिस्टिकल, कंप्लायंस एंड एमबीओ अप्रोच। ठीक है, ये हुआ आपका एचआर ऑडिट। अब नेक्स्ट थर्ड हम कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑडिट। नाम से ही समझ में आ रहा है सब कुछ, मैनेजमेंट। अब मैंने आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया, तो मॉनिटर का काम क्या होता है, जब क्लास में टीचर ना हो तो आप ध्यान रखें कि सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने डिसिप्लिन में हैं, ज़्यादा आवाज़ नहीं हो रहा, दूसरे क्लास को डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और जो होमवर्क करके आए हैं वो सारा ठीक से करके आए हैं, और जितने प्रोजेक्ट्स मैंने दे के रखे हैं आपको वो सबका चेक करना और रिव्यू ले लेना एक बार, फिर मेरे पास भेजना, टीचर्स के पास भेजना फाइनल। ठीक है ना, कितने एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने लोग सही से काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, कौन इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है। सो यू बीइंग अ मॉनिटर यू नीड टू मैनेज योर क्लास। Similarly, being being a company's manager, it's your responsibility to see how company is working. Is it working properly under plans, policies, methods, strategies which are already made, which are already designed. स्ट्रैटेजीज जो बनाई हुई थी, मेथड्स जो डिज़ाइन किए हुए थे, प्लान्स जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, यू नीड टू चेक वेदर ऑल दोज थिंग्स आर वर्किंग इन अ मैनर इट शुड बी वर्किंग, इट शुड बी एक्चुअली वर्किंग। वो चेक करना, आपको इवैल्यूएट करना। सो इवैल्यूएट का मतलब ये होता है कि आपने जो इम्प्लीमेंट कर लिया है, जो जो प्लान्स पॉलिसीज डाल चुके हो, एग्जीक्यूट कर चुके हो, उनमें से क्या रिजल्ट आया वो चेक करो आप, है ना। तो मैनेजमेंट का काम यही होता है, तो मैनेजमेंट ऑडिट भी ऐसे ही होती है। क्या मतलब मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजमेंट ऑडिट करने के लिए मेन कंसर्न कौन से पॉइंट्स पे डाला जाता है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। मतलब सबसे पहले तो आपको यही तो चाहिए, क्यों करते हो आप मैनेजमेंट ऑडिट, क्या कंसर्न क्या होता है आपका करने का ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, कि आप अपने गोल्स को अचीव कर सको। जितने आपके फंक्शंस हैं प्लानिंग के, ऑर्गेनाइजिंग के, डायरेक्टिंग के, कंट्रोलिंग के, वो सारे फुलफिल हो रहे हैं, फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो सारी ड्यूटीज फंक्शंस, ये चेक करने के लिए ऑडिट करते हो आप, कौन सा, मैनेजमेंट ऑडिट। एंड नेक्स्ट इज एक्शंस टेकन फॉर अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स, जो मेरी गोल्स हैं,
उनके लिए मैंने क्या एक्शंस लिए, इम्प्लीमेंट हुए वो एक्शंस, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, और हुए हैं तो अच्छे से हुए हैं कि नहीं हुए। यू नीड टू चेक ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, अब इसका स्कोप क्या है, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। अप्रेजल ऑफ इंटरनल कंट्रोल, आप कंपनी में चेक करना चाहते हो कि इंटरनली कंट्रोल कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा है। सो ऑपरेशन चेक करना चाहते हो कंपनी कैसे काम करती है, तो वो चेक करने के लिए आप इंटरनल कंट्रोल पे डिपेंड होते हो ना। जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसको अप्रेज करना, मतलब चेक करना, इवैल्यूएट करना कि कैसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, स्ट्रांग है कि वीक है, जिस पे हम बहुत डिपेंड होते हैं, जिस पे एक ऑडिटर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। सो इंटरनल कंट्रोल को चेक करना। ठीक है। उनकी बेसिकली परफॉर्मेंस को चेक करना एम्प्लॉयज की। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मतलब एवरी यूनिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप कह दो एवरी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कुछ भी कह दो एक ही बात है। सो आप ऑर्गेनाइजेशन के एक एक यूनिट के इंडिकेटर को चेक करते हो, to see the performance, to see the targeted performance is matched with the actual performance, to see how it has been performing। ठीक है। हर डिपार्टमेंट के हर एक इंडिकेटर को आप चेक करते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज अप्रेजल ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट अ मिनट। टू सी अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्यों करते हो आप अप्रेज, मतलब क्यों मैनेजमेंट ऑडिट किया जाता है, क्योंकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अप्रेज कर सको कि कितने अचीव हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या प्लान्स बनाए थे, कौन से एक्शंस एग्जीक्यूट हुए थे, वो चेक करने के लिए। अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब इसका मतलब क्या है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, सॉरी कितने एम्प्लॉयज हैं, कौन सी अथॉरिटी को रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर चेन बना हुआ रहता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर आपके चीफ मैनेजर्स होते हैं, फिर मैनेजर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, फिर उसके बाद होते हैं सबऑर्डिनेट्स, फिर होते हैं एम्प्लॉयज़, फिर एम्प्लॉयज़ के अंडर में उनके टीम होती है, मतलब एम्प्लॉयज़ का ग्रुप बना हुआ होता है। सो सपोज एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय है जो मार्केटिंग मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, तो मार्केटिंग मैनेजर चीफ मैनेजर को रिपोर्ट करेगा और चीफ मैनेजर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेगा। सो ये स्ट्रक्चर प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे तो नहीं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपने 4 जनों के हाथ में दी हुई है, तो अब मैं किस किस को रिपोर्ट करूँ, चार चार बॉसेस को थोड़ी मैं रिपोर्ट कर पाऊंगी, क्योंकि कभी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कभी एक होगा तो कभी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा हो जाएगा, तो मैं क्या 4 अलग अलग रिपोर्ट्स बना कर आऊँ, नहीं। सो यू नीड टू चेक विद द डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी, मतलब आपने एक एम्प्लॉय को कितने अथॉरिटीज में बांटा हुआ है, कितने कितने लोग हैं जिनको आपको रिपोर्ट करना है, यू नीड टू चेक दैट स्ट्रक्चर, इट शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। पुअर मैनेजमेंट, देखने के लिए कि मैनेजमेंट फेलियर हुई तो क्यों हुई, मतलब क्यों पुअर मैनेजमेंट क्यों हुआ, उसके हाइलाइट्स क्या है, उस ऐसी कौन सी एरिया है जिसमें मैनेजमेंट खराब हो गई, मतलब हमारा मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो फेल हो गया। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज, highlight those areas and see what corrective actions can be taken। एंड कॉन्फिडेंस टू लेंडर्स, आप ये मैनेजमेंट ऑडिट क्यों करते हो, क्योंकि जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेंडर्स होते हैं, जो आपकी कंपनी को पैसा देते हैं, वो सेफ हैंड्स में है, ऐसा उनको प्रूफ मिल जाए। मैनेजमेंट ऑडिट से ही तो मिलता है प्रूफ कि कंपनी बढ़िया काम कर रही है, कंपनी अच्छे से चल रही है, कंपनी मैनेज अच्छे से हो रही है। ठीक है, क्योंकि ऑडिटर का थप्पा लग गया ना कि कंपनी का मैनेजमेंट ऑडिट हो चुका है एंड कंपनी इज वेल मैनेज्ड। देयरफॉर कंपनी के जो लेंडर्स हैं उनको उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट दे आर इन सेफ हैंड्स, मतलब आपने कहीं पे भी गलत कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करी हुई है। इसका ऑडिटर कौन, इसका इसका ऑडिटर आपको स्पेसिफिकली अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। कंपनी का कोई भी जो मैनेजर है, जो अच्छी वाली पोस्ट पे है, मैनेजमेंट की पोस्ट पे, आप उससे भी मैनेजमेंट ऑडिट करवा सकते हैं। या फिर लिखा हुआ है देखो, हाँ, देयर आर नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑल्सो बट, सॉरी ये थोड़ा ग्रामेटिकली मिस्टेक लग रहा है, देयर आर नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन बट मैनेजमेंट प्रिफर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस फॉर दिस पर्पस।
ठीक है, मतलब स्पेसिफिकली कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, किसी को भी आप अपॉइंट कर सकते हो जो मैनेजमेंट की पोस्ट पे है, बट स्टिल यहाँ पे कौन ज्यादातर किसको अपॉइंट किया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, रिपोर्ट्स के लिए भी कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं है, जो आपने देखा उसको ब्रीफ कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स में आप लिख सकते हो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अलग से नोट डाउन करना है। चार्ट एंड डायग्राम्स और फिगर्स में बनाएंगे तो रिपोर्ट बहुत अच्छी लगती है, एंड देन फाइनली उसको एक ब्रीफ रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट के फॉर्म में उसको बनाने, जिसमें हेड्स दिखाने हैं आपको, हेड्स ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, हेड्स ऑफ एवरी यूनिट करके डिवाइड करना है रिपोर्ट को। ठीक है, आया समझ में मैनेजमेंट ऑडिट, सबको क्लियर है? कौन सा, कितने ऑडिट्स किए हमने बताओ? 3। सबसे पहला क्या था? फर्स्ट वन वाज कॉस्ट ऑडिट। वेरी गुड, कॉस्ट ऑडिट। सेकेंड, कम ऑन, अभी अभी तो किया, अभी अभी भूल गए। सेकेंड कौन सा था? ह्यूमन रिसोर्सेस वेरी ऑडिट। गुड, वेरी गुड, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। एंड थर्ड अभी अभी जो किया वो कौन सा था? मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। सो फोर्थ इज ऑपरेशनल ऑडिट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑपरेशन मतलब डे टू डे एक्टिविटीज। ऑपरेशनल मतलब डे टू डे एक्टिविटीज, मतलब आपकी बिजनेस की दिन भर रूटीन बिजनेस आपका कैसे चल रहा है उसको चेक करना। परचेज, सेल्स, आपका प्रोडक्शन कितना हुआ, मार्केटिंग कितना हुआ, मतलब जो आप रेगुलर, मतलब आपका जो रेगुलर बिजनेस है ना उसको चेक करना। ठीक है, तो इसका छोटा एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है। रिव्यू ऑफ, रिव्यू मतलब चेक करना, एक बार नजर घुमा देना। अ रिव्यू ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड इट्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर फंक्शनिंग, मतलब रोजाना का बिजनेस कैसे चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू देयर इफेक्टिवनेस, अच्छे से चल रहा है कि नहीं, एफिशिएंसी मतलब जो लोग हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, इन मीटिंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं ना, मीटिंग मतलब अचीव करना, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हैं, जो पहले से ही बताए हुए हैं, जो गोल सेट हैं, उनको आपको अचीव करना है, तो वो अचीव करने के लिए आपने क्या फंक्शनिंग करी हुई है, रोजाना का जो काम चल रहा है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, वो चेक करना। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? इफेक्टिवनेस चेक करना, एफिशिएंसी चेक करना, बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए जो आप ऑपरेशंस कैरी ऑन कर रहे हो, फंक्शंस को स्मूथली चला पा रहे हो कि नहीं चला पा रहे हो, वो चेक करना। टू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्क फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, एक पर्टिकुलर पर्सन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है उसमें, और उस कितना कंपनी ने रिस्क उठाया हुआ है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाने के बाद। ठीक है, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशंस, मतलब जो ऑपरेशंस मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसमें हम और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, वो जानने के लिए भी हम क्या बोलते हैं, ये ऑपरेशनल ऑडिट करते हैं। ठीक है, टू इवेल्युएट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ठीक से, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयज को दी हुई हैं वो फुलफिल हो, और वो रिपोर्ट अपनी अथॉरिटी को करे, मैचिंग अथॉरिटी, मतलब सबको आपको रिपोर्ट नहीं करना है, सिर्फ आपकी जो आपके सुपीरियर है उनको आपको रिपोर्ट करना है। सो दैट इज अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ना, फिर वो अपने सुपीरियर को करेगा, फिर वो अपने सुपीरियर को करेगा, एंड सो ऑन। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है लोगों पे, पॉलिसीज प्रोसीजर्स सब इफेक्टिव हो जाते हैं, अच्छे से काम करने लगते हैं सारे, क्योंकि पता है कोई नज़र रखने के लिए है। रिव्यू इंटरनल कंट्रोल, आपका इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम जो वीक था वो स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड रिस्क, मतलब आपकी कंपनी में कितना रिस्क, कितना एम्प्लॉयज़ हैं, कितने फ्रॉड हो रहे हैं, कितने कितने लॉसेस हो रहे हैं, कितने लॉस को ब्रेक किया जा रहा है, वो सारी चीज़ों पे नज़र रखी जाती है, और जितने भी फेलियर्स हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ सकता है उनको मिनिमाइज किया जाता है। ठीक है, ये भी एक एडवांटेज है। तो रिस्क को हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सी एरिया में रिस्क ज़्यादा है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी हम रोज का रोज देख रहे हैं ना, एवरी डे का वर्किंग देख रहे हैं ना, तो पता लग जाएगा इस दिन पे ये मिस्टेक हुई थी, इस दिन पे ये एरर हुआ था, इस दिन पे ये फ्रॉड हुआ, इस दिन पे ये पॉइंट ओमिट हो गई, तो आप पहले से ही देख रहे हो कि ये मिस्टेक्स रोजाना हो रही हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने का क्या, कैसे हम उसको इम्प्रूव करें। और जैसे ही आप अपने कंपनी में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, हर एवरी एरिया में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, तो आपके लिए तो आपके स्ट्रेंथ, आपका उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा ना कंपनी का।
ठीक है, आगे फ्लरिश कर सकती है कंपनी विथ बेटर प्रॉफिट्स, विथ मोर प्रॉफिट्स इन द फ्यूचर। ठीक है, ये कौन सा था आपका ऑपरेशनल ऑडिट। देखो कितने छोटे छोटे दिए हुए और बहुत सिंपल, मतलब आपको ज्यादा मतलब उसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है, इट हैज टू बी सिंपल एंड इट इज सिंपल। ठीक है, तो नाम में ही एक्चुअली आप टाइटल पढ़ते हो ना, तो टाइटल में ही सब कुछ ऑलरेडी समझ में आ जाता है। अब आ जाओ फोरकास्ट, अब नाम से ही समझ आ रहा है, बताओ फोरकास्ट का मतलब वेदर फोरकास्ट होता है जैसे, तो फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, अभी आप प्रेजेंट में खड़े हो और फ्यूचर फ्यूचर की प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्ट करना। वेरी गुड वेरी गुड, नाम से ही समझ में आता है, टाइटल देखो आप, टाइटल से ही समझ में आ गया। अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, हाँ ये हमेशा सही जाए ऐसा जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि ये हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो प्रेडिक्ट करते हैं जरूरी नहीं है, मैंने प्रेडिक्ट कर दिया वेदर, वेदर फोरकास्ट कर लिया मैंने, मैं एक्सपर्ट हूँ, अब मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कल बारिश बहुत तेज होने वाली है, घरों में रहना, बाढ़ आ सकती है, ठीक है, बाहर काम को मत निकलना, बहुत तेज बारिश पड़ने वाली है, जरूरी है ऐसा हो नहीं। अब आपने देखा होगा पिछले साल में जब भी जो फोरकास्ट हो रहा था वो फेल हो जा रहा था, आपने देखा होगा, मतलब कॉलेज तक वो बंद कर रहे थे, स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दे रहे थे, नेक्स्ट डे छुट्टी दे रहे थे और नेक्स्ट डे बिल्कुल धूप निकल आ रही थी। वो काफी सारे जोक्स भी बने थे, मतलब वेदर फोरकास्टिंग कराओ, कॉलेज की हाँ छुट्टी करने मैम। दो या कॉलेज स्कूल बंद कराने हो तो वेदर फोरकास्टिंग करवा दो, ऐसे बहुत सारे जोक्स भी आए थे लास्ट ईयर, क्योंकि जब वो फोरकास्ट कर रहे थे ना कि कल बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है, उसका स्कूल उल्टा हो कॉलेजेस रहा था। बंद कर दो, हाँ तो उल्टा हो जा रहा था। ये सिर्फ लास्ट ईयर ऐसा हो रहा था, हमेशा ऐसा नहीं होता है। लेट मी क्लियर यू आउट, फोरकास्ट हमेशा गलत भी नहीं जाता है, हमेशा सही भी नहीं जाता है। सो इन सिंपल वर्ड्स फोरकास्ट मीन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, सॉरी प्रेडिक्टिंग अबाउट द फ्यूचर, कि आप ना फ्यूचर की जानकारी निकालने के लिए थोड़ा बहुत आज ना एस्टिमेशंस निकाल रहे हो। तो ऑडिट भी ऐसे ही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फोरकास्ट ऑडिट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस के सक्सेस के लिए किया जाता है, कि कितना बिजनेस अच्छे से मैनेज हो रहा है, वो आज देखकर आप फ्यूचर की प्रेडिक्शंस निकालते हो कि अब इतना अच्छे से मैनेज हो रहा है तो फ्यूचर में हमको कैसे, हमको सेल्स बढ़ानी है, कितना मैनेज करना है, कैसे अगर मेरे कस्टमर्स बढ़ गए तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, एक प्रोडक्ट की जगह 4 प्रोडक्ट्स बना लिए तो मैं कैसे प्रोडक्ट्स को बेचूंगी, मार्केटिंग कैसे करूंगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, स्ट्रेटजीज बनाना, प्लान्स बनाना, फोरकास्ट करना। समझ आ रहा है, तो फोरकास्टिंग एक ऐसा मेथड होता है, एक टेक्निक होता है फॉर एस्टिमेटिंग मेनी फ्यूचर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। अब तो मैंने एक एस्पेक्ट बताया ना, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आप ये फोरकास्ट ऑडिट कर सकते हो, सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर नहीं। आप अपने बिजनेस का सिस्टम, मतलब जो सिस्टम चला रहे हो वो सही है कि नहीं है, आगे चल के कैसे वो सिस्टम को ठीक किया जा सकता है, उसके प्लान्स एंड प्रोसीजर्स, उसके उसकी स्ट्रैटेजीज, फिर आगे चल के पता चलता है स्ट्रैटेजीज जब हमने यूज करी तो पता लग जाता है कि मैंने फोरकास्ट सही किया था कि नहीं किया था। जब वाकई में वो इम्प्लीमेंट होता है, मतलब वाकई में वो दिन आता है, तो पता लग जाता है वाकई में बारिश हुई कि नहीं हुई। तो जब वाकई में वो स्ट्रैटेजीज हम अप्लाई करते हैं अपनी कंपनी में, तो पता लग जाता है कि जो मैंने फोरकास्ट किया था वो सही था कि नहीं था। सो इससे ये भी पता लग जाता है हाउ वेल योर कंपनी इज मैनेज्ड। ठीक है, कौन सी एरियाज है जहाँ पे आप फोरकास्ट ऑडिट यूज कर सकते हो? देर आर सम एरियाज इन विच बिजनेस हैज टू फोरकास्ट